Welcome back to Avikan Academy. आज I'm back with a session on the second part of the chapter Buddhism. ठीक है? It's a very important topic as I told you from ancient history. So we in the first part we discussed about who Gautam Buddha is, what is his background, what was his ideology, how he attained nirvana, uh, where his first sermon, where did he attain nirvana, how did he attain it, and what actually made him like Prince Siddharth. What caused Prince Siddharth to leave the comforts and luxuries of life and move into a life of asceticism? All right. So we discussed all that. Now we also studied about the patrons of Buddhism. We studied about how there were four Buddhist councils. So now let's move ahead and let's study about the different types of Buddhism. So for example, even if you look into Hinduism or the Sanatan religion, you will see that there are many kinds of beliefs. Some come from the Vaishnavite school, some come from the Shaivite school. ठीक है, Vaishnavism, Shaivism, Shaktism. There are different schools of thought. There is Dvaita, Advaita. There are many things. Similarly, in case of Buddhism as well, there are different ideological schools. There are different groups that practice Buddhism. And this kind of division is seen in many religions. Even in Islam, you see the Shias and the Sunnis. If you go into Christians, you will see Catholics and the non-Catholics. So similarly in Buddhism also, Jainism में भी होता है. There are the uh, Shvetambars and the Digambars. ठीक है? You have the Sthanakwasi, Murti Pujak. There are different these factions that they come up based on ideology. So even in Buddhism, there are different schools of thought. There are different ideologies. So let's go and have a look at them. The first one is Hinayana Buddhism, also known as Theravada. ठीक है? Now, what is the meaning of Hinayana? The word Hinayana means the lesser path or the lesser vehicle. ठीक है? Hinayana Buddhism को Theravada Buddhism भी कहते हैं. And this word Theravada means it is the doctrine of elders. This word means doctrine of elders. अब philosophies का ये है कि they will like they are true to the original teachings of Buddha. They say कि गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसे ऐसी चीजें बोली है and that is the ultimate truth and we will like 100% stick to whatever he said. And ये जो थेरावाडा स्कूल ऑफ थॉट है ये बेसिकली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट है. और थेरावाडा या हिनाना बुद्धिज्म के जो भी स्क्रिप्चर्स है ऑल ऑफ दो स्क्रिप्चर्स आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज. अब इनका बिलीफ सिस्टम कैसा है? स्कूल ऑफ थॉट तो है समझ लिया, बट स्कूल ऑफ थॉट का बिलीफ सिस्टम कैसा है? दे हैव रिजेक्टेड आइडल वर्शिप. उन्हें आइडल वर्शिप पसंद नहीं और उनको लगता है कि जो सेल्वेशन है, सेल्वेशन एज इन मोक्ष, कि सेल्वेशन अगर पाना है किसी को जिंदगी से, अगर मोक्ष पाना है तो उसके दो ही तरीके, एक है मेडिटेशन और दूसरा है एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है? और ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ है? हिनायना बुद्धिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यू विल फाइंड इट इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. एंड दिस सेक्ट हिनायना बुद्धिज्म इट वाज वेरी मच पेट्रोनाइज्ड बाय किंग अशोक. ठीक है? अशोका ने ये बहुत पेट्रोनाइज किया था इसको. कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बुद्धिज्म, द महायाना स्कूल ऑफ थॉट. महायाना हिनायना का मतलब होता है द लेसर पाथ और द लेसर व्हीकल. Mahayana school of thought, Mahayana Buddhism means the greater path or the greater vehicle. ठीक है? और ये लोग ये मानते हैं कि हिनायना और महायाना, ठीक है? अब देखो, क्योंकि हिनायना बुद्धिज्म जो हमने पढ़ा, इट इज ओरिजिनली नोन एज थेरावाडा बुद्धिज्म. वो बुद्धिज्म का एक्चुअल ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट था, बट महायाना उससे अलग हो गया. एंड महायाना बुद्धिज्म वालों ने क्या किया? द महायाना स्कूल ऑफ थॉट नेम्ड देमसेल्व्स एज महायाना बुद्धिज्म. और जो वो लाइक you can say the more stricter और जो कट्टर वर्जन था, they named it as Hinayana Buddhism. So ये Hinayana और Mahayana नाम it has come from the Mahayana school of thought. अब इसके अंदर कुछ further different philosophies है. The two philosophies, important philosophies that come under Mahayana Buddhism are Madhyamika and Yogacara. और महायाना बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स आपको संस्कृत में मिलेंगे. हिनायना का आपको पाली में मिलता है, महायाना के स्क्रिप्चर्स आपको थोड़े बहुत संस्कृत में मिलेंगे. और इनका बिलीफ सिस्टम कैसा है? ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं. गौतम बुद्ध
was God himself who manifested on the earth. That is what the Mahayana school believes. And Hinayana wale idol worship nahi karte, but Mahayana people, they worship idols. Whose idols they worship? They worship idols of Buddha, Gautam Buddha, and of Bodhisattvas. We'll see who or what are Bodhisattvas as we go on in the chapter. और जो Hinayana school of thought है, they don't believe in mantras, chanting and all. But the Mahayana school thought believes in mantras and chanting. अब हिनायना वालों को क्या लगता है कि बस मेडिटेशन करोगे और सेल्फ डिसिप्लिन रखोगे तुमको सेल्वेशन मोक्ष मिल जाएगा. Mahayana people, they think that if you need moksha, you need to have the mindfulness of Gautam Buddha. Basically, you need to always keep Gautam Buddha in your mind, his philosophies in your mind. You should be mindful about whatever he said. Also, they say that you have to keep faith and devotion. कि तुम चाहे डिसिप्लिन रखो, मेडिटेशन रखो, बट उसके साथ साथ तुमको भगवान में, ईश्वर में फेथ रखना पड़ेगा, डिवोशन रखना पड़ेगा. एंड हु इज गॉड और ईश्वर फॉर देम? फॉर देम गॉड इज गौतम बुद्ध. ठीक है. एंड इसका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस कहां कहां मिलता है महायाना बुद्धिज्म का? यू फाइंड इट इन चाइना, जापान, साउथ कोरिया, भूटान. ठीक है. दीज आर द कंट्रीज जहां आपको महायाना बुद्धिज्म मिल जाएगा. देन अनदर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म is known as Vajrayana Buddhism. Now, what is Vajrayana Buddhism? Vajrayana Buddhism जो है, वज्रयान वर्ड का वज्र मीन्स थंडरबोल्ट. इंद्र का जो लॉर्ड इंद्र है, द गॉड ऑफ थंडर, उनका जो वेपन है, वी कॉल दैट एज वज्र. वज्र मीन्स थंडर. ठीक है. सो वज्रयान मीन्स व्हीकल ऑफ थंडर. ठीक है. अब वज्रयान बुद्धिज्म के कुछ और नाम है, जैसे मंत्रयान, तंत्रयान. ठीक है. ये जो वज्रयान बुद्धिज्म है, ये 11th सेंचुरी में पैदा हुआ है. कहां पैदा हुआ है? तिब्बत में पैदा हुआ है. और इनका जो लैंग्वेज है, दे यूज अ वेरी सिंबॉलिक टाइप ऑफ लैंग्वेज. द लैंग्वेज दैट दे यूज, दे कॉल इट एज संध्या भाषा. नाउ संध्या मींस द टाइम बिटवीन डे एंड नाइट, जब शाम होती है, ट्वाइलाइट. ठीक है. एंड भाषा मींस लैंग्वेज. सो संध्या भाषा का लिटरल मीनिंग होता है द ट्वाइलाइट लैंग्वेज. ठीक है. अब वज्रयान में क्या बिलीव होता है? दे बिलीव इन गुरु. ठीक है. कि कोई एक गुरु होगा जो उनको भगवान से कनेक्ट करवाएगा, एंड दैट गुरु दे कॉल हिम एज लामा. ठीक है. और जो ये लामाज है, लामाज आर नथिंग बट गुरुज इन वज्रयान बुद्धिज्म. इन लामाज का एक बहुत बड़ा लिनिएज. एक लामा होता है, उसके जाने के बाद एज सुन एज द लामा लीव्स हिज मॉर्टल बॉडी, अनदर लामा कम्स, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट. एंड करेंटली द दलाई लामा who lives in धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, इंडिया, he is one of the most famous lamas out there. ठीक है. अब ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इसका क्या है? ये तुमको देखने को मिलेगा तिब्बत में, जहां ये पैदा हुआ, और तिब्बत के आसपास नेपाल, भूटान, एंड इन मंगोलिया. दे बिलीव इन zen मेडिटेशन एंड ऑल. एंड इसका ओरिजिन क्या है? ये उसका ओरिजिन हुआ है महायाना बुद्धिज्म से निकल के आया है वज्रयान बुद्धिज्म. ठीक है. हुआ ये था कि देखो, जब टैंग डायनेस्टी का रूल था चाइना में, at that time this school of thought of Buddhism came out of Mahayana Buddhism. अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है? ये बेसिकली इनका जो मेडिटेशन है ना, इनके मेडिटेशन के टेक्निक्स में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है. जैसे ये लोग थोड़ा तंत्र साधना में बिलीव करते हैं, which is not, तंत्र साधना is something which you find more often in the Vedic culture, the Hindu culture. ठीक है. तो तंत्र साधना में बिलीव करते हैं ये लोग, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डीटीज ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म इज ताड़ा. Now we'll look at some important Buddhist writers. ठीक है. We studied about some Buddhist literature also. Before we studied about Milinda Panha, we studied about different books in Buddhism, the three Pitakas. तो अब देखते हैं कि इन बुक्स को, ये जो बुद्धिस्ट राइटिंग्स है, इनके राइटर्स कौन है, लिखा किसने? Who has written it? सबसे पहला राइटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अश्वघोष. अश्वघोष ने क्या किया था? अश्वघोष wrote the book बुद्ध चरिता. बुद्ध चरित, इसका मीनिंग होता है एक्ट्स ऑफ द बुद्ध. एक्ट्स ऑफ द बुद्धा मीन्स बुद्ध के, गौतम बुद्ध के लाइफस्टाइल, मतलब लाइफ के ऊपर. इट्स लाइक एन ऑटोबायोग्राफी. और ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया. देन देयर इज अनदर राइटर नोन एज नागार्जुना. ठीक है. मैंने पढ़ाया था महायाना स्कूल में, दो फिलोसॉफीज आती है, मध्यमिका एंड योगाचरा. तो जो मध्यमिका स्कूल ऑफ थॉट है, उस स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडर है नागार्जुन. ठीक है. नाउ देयर आर टू ब्रदर्स
असंग एंड वासुबंधु, ठीक है, दे वर ब्रदर्स। व्हाट डिड दे डू? ये जो वासुबंधु है, वासुबंधु सबसे ग्रेटेस्ट वर्क, द बेस्ट थिंग ही हैज रिटन इज अभिधर्म कोश, ठीक है। अब अभिधर्म कोश क्या है? ये बेसिकली बुद्धिज्म का एक एंसाइक्लोपीडिया है। आप जो एंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हो, लाइक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन मेनी थिंग्स, इट गिव्स यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन बुद्धिज्म, ठीक है। और जो असंगा है, असंगा जो योगाचार स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, उसका एक इंपॉर्टेंट टीचर, ठीक है, उसके एक इंपॉर्टेंट टीचर। अब योगाचार स्कूल का फाउंडर कौन है? ही इज द गुरु ऑफ असंगा। द नेक्स्ट राइटर इज दिनागा, ठीक है। अब दिनागा का नाम क्यों है? बिकॉज ही इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। बुद्धिज्म के जो फेथ्स है, उसमें लॉजिक क्या है, उसमें इंटेलेक्चुअलिटी क्या है, किस इंटेलेक्चुअल से वो लॉजिक आ रहा है कि बुद्धिज्म में ये करने को कहा जा रहा है, तुम्हें वो करने को कहा जा रहा है, दैट इज रिटन बाय दिस पर्सन। देन वी हैव धर्म कीर्ति, ठीक है। धर्म कीर्ति का टाइम क्या है? ही लिव्ड सम टाइम इन द 7th सेंचुरी, ठीक है, इन द 600s। एंड he was a very good Buddhist logician. He was a philosophical thinker. He used मतलब बुद्धिस्ट फिलोसॉफीज पे चर्चा, उस पे लिखना, बुद्धिज्म का लॉजिक नोट डाउन करना, एंड अ डायलेक्टिशियन, ठीक है। ही वाज अ लाइक व्हाट टू से वंस अगेन, लाइक जो बुद्धिस्ट थॉट्स उसको एक प्रॉपर भाषा देना, उसमें लॉजिक क्या है उसके पीछे, लाइक व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, रैशनल बिहाइंड इट। बेसिकली दीस आर इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट सोसाइटी। Now let's look at some important terms or words that are used in Buddhism. The first term is upasak. उपासक कौन है? बुद्धिज्म कोई भी मेल फॉलोअर हो गया उसको उपासक बोलते हैं। देन वी हैव उपासिका। उपासिका कौन है? बुद्धिज्म के फीमेल फॉलोअर्स को उपासिका कहा जाता है, ठीक है। देन वी हैव पवराज्य, ठीक है। व्हाट डज पवराज्य मीन? ठीक है, मान लो कोई एक बुद्धिस्ट इंसान है, पवराज्य का मतलब होता है गोइंग फोर्थ फ्रॉम होम, मतलब घर से आगे निकल के चले जाना। मान लो कोई इंसान है जिसने अपना मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दिया, ही इज अ बुद्धिस्ट पर्सन, उसने अपना मटेरियल वर्ल्ड छोड़ दिया, he left his home and luxuries and he went into asceticism to live as a monk. That is called as pavrajya, ठीक है। then there are something called चैत्यास। चैत्या कौन सा जगह होता है? मॉन्क्स का जो प्रेयर हॉल होता है ना, मतलब द एरिया इन विच मॉन्क्स सिट डाउन एंड प्रे, दैट एरिया इज नोन एज अ चैत्य, ठीक है। एंड वी हैव विहारास। Viharas are nothing but monasteries. Vihar, the word vihara or vihar means a place of residence. The word vihar means a place of residence. ठीक है? So viharas are nothing but monasteries or monk quarters, you can see. And then we have something called Torana. Torana क्या है? देखो बुद्धिज्म में there are certain relic sites called as stupas. ठीक है? जहाँ पे गौतम बुद्ध के relics को स्टोर करके रखा है। You must have seen the Sachi stupa. You must have studied about it in art and culture. ठीक है? तो स्तूपा का जो गेट होता है, स्तूपा का जो गेटवे होता है, दैट गेटवे इज नोन एज तोरण। हियर आर सम अदर टर्म्स, ठीक है। उपासंपदा, ठीक है, ऑर्डिनेशन सेरेमनी व्हेन अ नोवाइस बिकम्स अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ द मोनास्टिक कम्युनिटी। मान लो कोई आदमी घर छोड़ के चला गया, मॉन्क बन के ट्रेन करेगा, खुद को साधना करेगा, डिसिप्लिन में रखेगा, फिर ये सब करते करते जब वो इंसान प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा एज अ मॉन्क, a person will join the monastic community, the monks community full fledgedly. तो वो जो full fledged joining का ceremony है, that is known as upasampada. Now the term bodhisattva, I told you that the Mahayana school worships the ideals of bodhisattvas. bodhisattva है क्या समझते हैं, ठीक है। enlightened being refraining from entering nirvana to save others, worship preserving, मतलब ऐसा कोई इंसान जो enlightened हो चुका है, ठीक है, उसको अभी निर्वाणा मिल जाएगा, उसको अभी थोड़ी देर में मोक्ष मिल जाएगा अगर वो चाहे तो, बिकॉज ही इज एनलाइटेड। वो निर्वाणा ले लेगा, मोक्ष ले लेगा, अपना पार्थिव शरीर छोड़ के वो चला जाएगा, मोक्ष मिल गया उसको। बट वो ये नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता? बिकॉज सिंस ही इज एनलाइटेंड, नाउ ही विल स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग द फाइनल निर्वाणा। ही विल स्टे बैक, एंड रादर आफ्टर स्टेइंग बैक ही विल हेल्प अदर्स टू अचीव निर्वाणा एज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ बोधिसत्व इज। एंड बोधिसत्व को एक्चुअली दे आर वर्शिप्ड एज अ डीटी। डीटी मींस गॉड, देवता, ठीक है।
देन द भिक्खु संघ, ठीक है। भिक्खु संघ मीन्स संघ ऑफ मॉन्क्स। मॉन्क्स का जो एक संघ होता है, गिल्ड होता है, एक ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड अ भिक्खु संघ और अ भिक्षु संघ, यू कैन से। देन वी हैव द भिक्खुनी संघ, इट इज अ संघ ऑफ नन्स। सी, जो मेल एसेटिक्स होते हैं, मेल सन्यासी होते हैं, उनको मॉन्क्स कहा जाता है इंग्लिश में, और फीमेल सन्यासियों को नन्स बोला जाता है। तो नन्स के संघ को या ग्रुप को भिक्खुनी संघ कहते हैं। Then we have a term called Sarvastivadin. Sarvastivadin. What is Sarvastivadin? One of the popular schools of Theravada, believing everything exists continuously in all three phases of time. मतलब सर्वस्तिवदीन एक ऐसा थॉट है जो थेरावाडा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म से आया है, और वो ये मानता है कि दुनिया में जो भी है, व्हाट आर द थ्री फेजेस ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये स्कूल ये मानता है कि यहाँ अभी जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल थ्री फेजेस। ऐसा कुछ नहीं है जो पहले नहीं था और अभी है, या अभी है और बाद में नहीं होगा। इट्स ऑल एग्जिस्टिंग थ्रू आउट। देन सौत्रंतिका, ठीक है। सौत्रंतिका, देखो बुद्धा के टीचिंग्स को सूत्र कहा जाता है। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर known as the sutras. Now the group of people who considers only the sutras as valid source and any other source as invalid, that group of devotees or worshippers are called as sautrantika. Then ऐसा आदमी जिसको एनलाइटनमेंट अटेन हो चुका है, सच अ पर्सन इज नोन एज अरहत, ठीक है। देन निब्बना, निब्बना या निर्वाणा, निर्वाणा को निब्बना पाली में कहते हैं, जिस आदमी को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल चुकी है। Someone who has been liberated from the cycle of birth and death and rebirth and death and so on and so on and so on, जो इस साइकिल से रिलीज हो चुका है, that person, it is said कि ये जो प्रोसेस है, this liberation, this is known as निब्बना और निर्वाणा, ठीक है। then a term called श्रवका, गौतम बुद्ध के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, जिन्होंने सीधा सीधा गौतम बुद्ध से शिक्षा ली थी, like Buddha himself taught these people, these disciples of Gautam Buddha are known as Shravakas. Then there is a word called अमिताभ। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब स्वर्ग चले गए वापस, ठीक है, तो बुद्धा's name in heaven is given as अमिताभ। Then there is some future Buddha. You know, many different religions have this belief in their own forms कि ये जो हमारी दुनिया है, as you all can see, we are all going to waste. The situation of the world is very bad, violent, cruel, selfish, unsafe. It's filled of gluttony, greed, lust, violence, anger. But everybody believes that someone will come in the future who will save the world and reset it back to how it was years ago, filled up of goodness, happiness, peace, so on and so forth. Like in Hinduism, we talk about the 10 avatars of Vishnu, out of which Kalki will appear at the end of the Kali Yuga. Similarly, Buddhism, they believe that there is a future Buddha. ठीक है, फ्यूचर में एक और बुद्धा आएगा। देखो, बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेंड वन, ठीक है। फ्यूचर में एक और कोई बुद्धा आएंगे जो आके इस दुनिया को सुधार के जाएंगे। एंड द बुद्धिस्ट से द नेम ऑफ द फ्यूचर बुद्धा इज मैत्रेय। देन ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किंग मिलिंद, ठीक है, और बुद्धिस्ट मॉन्क नागार्जुन। किंग मिलिंद का नाम है किंग मिनेंडर वन, उनको इंडिया में किंग मिलिंद बोला जाता है, ठीक है। किंग मिलिंद और सॉरी बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन अ बुक, ठीक है। उस कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड को वी कॉल इट एज मिलिंद पर्व। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड श्रमण ट्रेडिशन, practitioners who strive or labor wholeheartedly towards enlightenment used for monks. श्रमण ट्रेडिशन मीन्स कि आपको अभी तक एनलाइटनमेंट मिला नहीं है, बट आप होल हार्टेडली एनलाइटनमेंट के लिए लेबर करते हो, मेहनत करते हो, ताकि आपको एनलाइटनमेंट मिल जाए, ठीक है। और ये कौन करता है? मॉन्क्स करते हैं, ठीक है। ध्यान करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, दे हैव अ पीसफुल लाइफ, they don't go into any violence, they don't speak bad, they don't see bad, they don't hear bad. This way of life is known as the Shraman tradition.
Now we have a question here. Which Buddhist text contains an account of the Emperor Ashoka? ठीक है? Which Buddhist text contains an account of the Mauryan Emperor Ashoka? The answer is option D, Mahavamsa. महावंश जो किताब है उसमें एम्परर अशोका का जिक्र है और उस बुक में ये भी कहा गया है कि अशोका had 99 brothers and he fought and defeated and killed all his 99 brothers to become the king of Magad. Then which one of the following statements about Buddhist stupas in India is not correct? Ashoka played an important role in popularizing the stupa cult. They were repositories of relics of Buddha and other monks. They were located in rural areas. They were located to trade routes. ठीक है? So these are the questions. These are the statements of पूछा है which of the following is not correct. Now the not correct statement here is that they were located in rural areas because trade routes mostly urban areas से ही पास होते हैं और स्तूपास को ट्रेड रूट पे इसलिए रखा जाता था ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं दे कैन ऑल्सो कम एंड सी द कल्चर ऑफ बुद्धिज्म हियर इन इंडिया. ठीक है? दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ कीपिंग इट ऑन द ट्रेड रूट्स एंड स्तूपा को पॉपुलराइज करने में अशोका का रोल था. ठीक है? ही हैड अ रोल इन दैट बिकॉज़ ही वाज अ बिग पैट्रोनाइजर ऑफ बुद्धिज्म एंड एज वी से स्तूपास में बुद्ध गौतम बुद्ध और दूसरे मॉन्क्स के रेलिक्स रखे जाते हैं. ठीक है? तो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी व्हिच इज आवर आंसर. The next question. Consider the following statements about Buddha's faith in Buddhism. Statement 1. Ruminde pillar inscription and Nigali Sagar pillar inscription provide clear evidence of Buddha's faith in Buddhism. ठीक है? Yes, this is correct. क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध ने प्रॉपरली मेंशन करके रखा है कि why he believes it and actually how he is implementing it because in सब inscriptions में उसने non violence और tolerance की बात लिखी हुई है based on the Buddhist philosophy and how he is practicing it. So it is very evident. The second statement is Minor Rock Edict 1 gives evidence of a sudden change in Buddha's faith in Buddhism. ऐसा कुछ नहीं. अशोका का faith कभी भी बुद्धिज्म में change नहीं हुआ है. He always had the same faith in it. So statement 2 is wrong. The correct answer is option A, 1 only. Now the last question. Statement 1. According to Mahavamsa, Ashoka turned to the Buddhist dharma when his nephew Nigrodha preached the doctrine to him. Statement 2. Divyavadana ascribes Buddha being drawn to the Buddha's teaching to the influence of Samudra, a merchant turned monk. Statement 3. Deepavamsa speaks of Samudra, the 12-year-old son of a merchant, as the key figure in Ashoka's coming under the influence of the Buddhist dharma. Now, this is one question, the last question, which I want you guys to attempt. Tell me the answer of this question in the comment section below. I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. ठीक है? We'll be back with another video on another topic very soon. ठीक है? Until then, goodbye, take care and Jai Hind.